بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں راحیل اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کیا بغیر لائسنس ٹریول اینڈ ٹورزم مینجمنٹ ٹریول ایجنسی چلائی جا سکتی ہے، یا بغیر لائسنس ہم ٹریول ایجنسی کا کاروبار، ٹریول ایجنسی کا بزنس ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی ٹریول ایجنسی اپنا بزنس کر رہی ہیں، تو کیا یہ ریگولیٹڈ ہیں، کیا ان کے پاس لائسنس موجود ہے؟ اور ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ٹریول اینڈ ٹورزم کے بزنس میں موجود ہیں، لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی دفتر ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی لائسنس ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم بات کریں گے اور میں پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے، برائے مہربانی ایک نوٹ بک آپ لے لیں اور جو پوائنٹ ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ٹریول اینڈ ٹورزم کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک کورس ترتیب دیا ہے، تو وہ ٹریننگ مکمل کر کے ٹریول اینڈ ٹورزم کے بزنس میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ویڈیو بیس ٹریننگ کورس موجود ہے، ہمارے پاس لائیو ٹریننگ سیشنز کی سہولت موجود ہے۔ اس کے لیے آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0305405144 0305405144۔ جو لوگ ٹریول ایجنسی کا کورس کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، میں آپ کو اس کی تفصیلات فراہم کر دوں گا۔ اب ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا بغیر لائسنس ہم کوئی بھی ٹریول سے جڑا ہوا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو ٹریولنگ ہے اس میں آپ کے ڈاکومنٹس انوالو ہوتے ہیں، جیسے کہ پاسپورٹ، جو کہ آپ کا سفری دستاویز ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا CNIC ہے، آپ کا ویزا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ اکیلے یہ پورا بجٹ افورڈ نہیں کر سکتے، اگر آپ کے پاس 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ کا بجٹ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ پارٹنرشپ میں اپنے مخلص دوستوں کو، رشتہ داروں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ اگر آپ 5 آدمی ہو جاتے ہیں اور ہر آدمی 2 لاکھ روپے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اس طرح سے آپ کے پاس 5 آدمیوں کا کیپٹل 10 لاکھ روپے جمع ہو جائے گا۔ اس 10 لاکھ روپے میں سے 4 لاکھ روپے آپ بینک گارنٹی میں جمع کروائیں بطور بینک گارنٹی، وہ سیو رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ DTS کا لائسنس حاصل کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم سروسز، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے، وہاں سے جب آپ لائسنس حاصل کرتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا لائسنس لینے کے لیے بھی آپ کو 4 لاکھ روپے کی بینک گارنٹی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ 5 لوگ ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ تمام لوگوں کے NTN بنیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم سروسز سے رابطہ کر کے ایک ٹریول ایجنسی کا نام ریزرو کروا لینا ہے، اور بہتر ہے اگر آپ نے اس کو لانگ ٹرم پلان کیا ہے، 5 سال 10 سال 20 سال پلان کیا ہے، تو سب سے پہلے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں اس نام کو ریزرو کروائیں، کمپنی رجسٹرڈ کروائیں پارٹنرشپ ایکٹ کے مطابق، اور اس کے بعد آپ DTS دفتر میں جا کے یا کال کے ذریعے نام ریزرو کروائیں۔ وہ آپ کو ایک لیٹر جاری کریں گے، اس پہ آپ نے وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے DTS لائسنس حاصل کرنے کے لیے، جس میں امپورٹنٹ چیز ہے بینک اکاؤنٹ اوپن ہونا، بینک کی گارنٹی، اور اس کے علاوہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ بنے گا، آپ کا ویریفیکیشن لیٹر جو ہوتا ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک آپ کی ویلیویشن کرے گا ایسٹس کی، اور آپ کو ایک رپورٹ جاری کرے گا۔ وہ لسٹ جو ہے وہ آپ کو دفتر سے مل جائے گی، آن لائن DTS آفس سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بغیر لائسنس کے کام نہ کریں، 2 3 4 5 دوست مل کے کیپٹل ایکیمولیٹ کریں۔ 10 لاکھ میں سے 4 لاکھ روپے آپ کے گارنٹی میں چلے گئے، 6 لاکھ روپیہ آپ کے پاس پیچھے رہ جائے گا۔ اس 6 لاکھ روپے میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دفتر لینا ہے، اس کا فرنیچر لینا ہے، آفس کے اکوپمنٹس لینے ہیں، پرنٹر، اسکینر، تھوڑی سی ڈیکوریشن کرنی ہے، اور وہ 6 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر آفس آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں تو وہ ایڈوانس کی مد میں بھی جائے گا۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کا DTS لائسنس جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ اب آپ کو ٹکٹنگ کے لیے ایگریمنٹ کرنا ہوگا آیاٹا کے ساتھ۔ آیاٹا کی گارنٹی 1 کروڑ روپیہ ہوتی ہے، لہٰذا آپ ابھی بڑے لائسنس کی طرف نہ جائیں، چھوٹا لائسنس حاصل کریں جو کہ DTS لائسنس ہے۔ ہر سال آپ کے ٹیکس ریٹرن سبمٹ ہوں گے، انڈیویجولس کے بھی اور کمپنی کے بھی۔ کمپنی بنا کے کام کریں گے تو آپ کو لانگ ٹرم بینیفٹ ہوگا، پہلے آپ SCCP میں رجسٹرڈ ہو جائیں،
सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद DTS लाइसेंस आप हासिल कर लें। हर साल आपकी गारंटी रिन्यू होगी, आपका लाइसेंस रिन्यू होगा, जो कि तकरीबन 20,000 रुपये सालाना उसका ख़र्चा आता है लाइसेंस रिन्यूअल का। इसके अलावा जब 5 दोस्त मिलकर काम करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अगर आपके महीने का खर्चा 25,000 है तो 5 दोस्तों पे डिवाइड हो जाएगा, 5-5 हज़ार सब पर डिवाइड होगा। अगर कंपनी जो है वो 1 लाख रुपया कमाती है महीने का तो वो भी तमाम दोस्तों पर डिवाइड हो जाएगा। अगर आप बगैर लाइसेंस के काम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप अपने शनाख्ती कार्ड पे एक NTN रजिस्टर्ड करवाएंगे, जो कि आपका ID कार्ड पे रजिस्टर्ड हो जाएगा बतौर कंसल्टेंट। बतौर कंसल्टेंट आप अपने आप को शो कर सकते हैं कि आप एक ट्रैवल एडवाइज़र हैं, आप एक ट्रैवल कंसल्टेंट हैं, लेकिन आप कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, आप टिकट सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इख्तियार नहीं है। आप मशवरा दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा नाम है मोहम्मद राहील इकबाल, तो मैं एक NTN बनवा लेता हूँ, राहील ट्रैवल कंसल्टेंसी। उसमें मैं लोगों को मशवरा दे सकता हूँ कि मलेशिया जाने का क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, मशवरा। वो मशवरे की मैं फ़ीस ले सकता हूँ 200 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, और मैं उस इनवाइस को बनाने का मजाज हूँ, यानी कि वो इनवाइस मैं बना सकता हूँ जो मैंने मशवरा दिया है। लेकिन आप टिकट सेल नहीं कर सकते, आप वीज़ा सेल नहीं कर सकते, आप उम्रा पैकेजेस सेल नहीं कर सकते, आप इसके अलावा अदर सर्विसेज सेल नहीं कर सकते अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आपके पास DTS का लाइसेंस नहीं है, आपके IATA के साथ एग्रीमेंट्स नहीं है, तो ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बिल्कुल भी सरमाया नहीं है और आप किसी दोस्त को भी मिलाना नहीं चाहते, आप एक छोटा सा दफ्तर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको NTN बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं बतौर सिंगल मेंबर SMCP, सिंगल मेंबर कंपनी लिमिटेड, कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ, मैं लोगों को मशवरा देता हूँ। जैसे जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, मकान उसका नहीं होता, प्लॉट उसका नहीं होता, देने वाला और होता है, ख़रीदने वाला और होता है, वो बीच में एक बतौर मुशीर काम करता है, बतौर मशवरे के तौर पे काम करता है। तो आप एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि मुझे पाकिस्तान से दुबई जाना है, मुझे टिकट चाहिए, तो आप उसको मशवरा दे सकते हैं 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये मशवरा फ़ीस लेकर, कि मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ कि कौन सी एयरलाइन बेहतर है, कौन सी एयरलाइन से आपको जाना चाहिए, और आप किसी ट्रैवल एजेंसी पर उसको रेफ़र करेंगे। उस ट्रैवल एजेंसी के साथ आपका एक MOU साइन होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो आपको माइनर सा कमीशन देंगे। आप बतौर कमीशन एजेंट काम कर सकते हैं, लेकिन आप ख़ुद कुछ भी सेल नहीं कर सकते। अगर आपने बिज़नेस करना है तो आपको लाइसेंस लेना होगा DTS का। आप चाहें तो ट्रैवल एंड टूरिज़म का लाइसेंस ले लें, वो बेहतर है, उसमें आप टिकटिंग भी कर सकते हैं, आप टूर पैकेजेस भी अरेंज कर सकते हैं, आप वीज़ा कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन भी अरेंज कर सकते हैं। लाइसेंस से आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी कुव्वत बढ़ती है, आपकी पावर बढ़ती है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, कंपनी अकाउंट होता है, पेमेंट उसमें आती है, आपकी स्टेटमेंट मेंटेन होती है और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जब अल्लाह ताला वो आपका काम चला दें आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप बड़ा कैपिटल एक्यूमुलेट करें और IATA की तरफ जाएं। IATA क्योंकि एक बड़ी कंपनी होती है, बड़ी एजेंसी होती है, जिस पे हज कोटा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको एयरलाइंस की सेल्स पर, टिकट सेल्स करने पर जो टारगेट अचीव होते हैं उस पर आपको बोनस मिलता है, फ्री टिकट्स मिलती हैं, आपको गाड़ियाँ इनामात के तौर पे मिलती हैं, आपको कैश रिवॉर्ड मिलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलें। और मेरा मशवरा ये है कि आप जो है अगर दोस्तों के साथ जो है वो कंपनी बना सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। उसमें लायबिलिटीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्सपेंसेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और सारे आदमी मिलकर काम करते हैं। अब ये काम सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सारा काम सिखाएंगे आपको। उसके बाद जब आप लाइसेंस हासिल कर लेंगे तो आपके IATA के साथ एग्रीमेंट्स भी करवा देंगे, ताकि आप डायरेक्ट उनके साथ टिकटिंग वगैरह ले सकें। अगर आप अपने माशरे में देखें जो लोग काम कर रहे हैं बगैर लाइसेंस के, तो ये गैर कानूनी है। अब मिसाल के तौर पे मस्जिद के एक इमाम साहब हैं, वो एक नेक शख्सियत हैं, तो उनका एक ताल्लुक़ है एक एजेंसी के साथ और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं दीन के मामले में। तो वो क्या करते हैं कि जी लोगों को उम्रे पे लेके जाते हैं, जो कि सवाब का काम है। तो वो तमाम पासपोर्ट उठा के किसी एजेंसी में रेफ़र करते हैं, तो उनको माइनर सा कमीशन दिया जाता है। तो अल्लाह ताला ने उनका एक ये निज़ाम चलाया हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो वर्क वीज़े का काम कर रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर रिक्रूटमेंट का काम कर रहे हैं, इसके अलावा यूरोप, शेंजन, तुर्की, इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये गैर कानूनी है, ये मुनासिब नहीं है। इसके लिए आप बाकायदा लाइसेंस बनाएं, कम से कम NTN रजिस्टर्ड हो आपका। आप कंसल्टेंसी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसमें अपने क्लाइंट को खुद डील नहीं करेंगे, सिर्फ उनको मशवरा देंगे कि यार ये टिकट आ रही है इतने की, मैं आपसे लूँगा 500 रुपये, मैं आपको सस्ती टिकट निकाल के दे दूँगा, मैं सिर्फ आपको मशवरा दे सकता हूँ। टिकट की सर्विस आपको किसी एजेंसी से लेनी पड़ेगी।
अब एक आदमी आपसे कहता है जी आके मुझे मलेशिया का वीज़ा चाहिए, अब क्योंकि आपकी तो ट्रैवल एजेंसी नहीं है, आप एक कंसल्टेंट हैं, आप उनको मशवरा देंगे कि मलेशिया जाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मलेशिया वीज़े के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मलेशिया जाने की टिकट इतने की बनेगी, मेरी मशवरा फ़ीस 1000 रुपये आप मुझे दे दें, आपको ये सर्विसेज किस एजेंसी से मिलेंगी वहाँ पे उसको रेफ़र कर दें। जो एजेंसी आयाटा हो या DTS की एजेंसी हो, जहाँ पे वो उनको वीज़ा मिल जाए, उनको टिकट मिल जाए, उनको सर्विसेज मिल जाए। जानकारी आपने देनी है, उसकी फ़ीस लेनी है, उसको मशवरा फ़ीस कहते हैं, उसे कंसल्टेंसी फ़ीस कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पूरे वर्ल्ड में लेबर सप्लाई का काम करते हैं, ओवरसीज़ मैन पावर का काम करते हैं। उसके लिए आपको जैसे DTS लाइसेंस होता है, आयाटा लाइसेंस होता है, इसी तरह से प्रोमोटर लाइसेंस भी होता है। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अंडर हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है, उसके अंडर में ये लाइसेंस जारी किया जाता है, जिसमें फिर मुख्तलिफ लोग अपनी डिमांड जो है वो आपको भेजते हैं। अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन उसको वेरीफाई करने के बाद अपने पोर्टल के ऊपर उसको लॉन्च कर देती है कि हमें कतर, बहरीन, सऊदी अरब, दुबई में इतने लोग चाहिए। उसमें वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, बाइक राइडर्स, ड्राइवर्स, मुख्तलिफ़ किस्म के वीज़ाज़ होते हैं। उसके लिए भी आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। अगर आप बगैर लाइसेंस के ये काम करते हैं और आप पकड़े जाते हैं, FIA आपको इन्वेस्टिगेट करती है, तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आएंगे, तो आपके ख़िलाफ़ पूरी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने पाकिस्तान में ट्रैवल एंड टूरिज़म के शोबे में काम करना है बतौर कंसल्टेंट, तो कम से कम NTN रजिस्टर्ड कराएँ और लोगों को सिर्फ मशवरा दें। कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करनी है आपने, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास इख्तियार नहीं है। उसको फिर आप रेफ़र करेंगे किसी एजेंसी पे जिनके साथ आपका MOU साइन होगा, क्लाइंट जाएगा उस एजेंसी पे, वहाँ से वो सर्विसेज लेगा और वो एजेंसी फिर आपको माइनर सा कमीशन देगी। उसके बाद आप DTS लाइसेंस की तरफ आ जाएं। अगर आपके पास बजट है तो आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस लाइसेंस इस्टेब्लिश कर लें। कैपिटल नहीं है तो दोस्तों के साथ मिल के आप पार्टनरशिप जो है वो कर लें, या फिर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें जिसमें दोस्त होंगे, उसमें एक CEO होगा, बाकी डायरेक्टर्स होंगे, और फिर आपकी टैक्स रिटर्न जमा होंगी, प्रॉपर एक उसका ऑडिट होगा। कंपनी जब बनती है तो उसका ऑडिट होता है, उसमें ऑडिटर जो है वो सालाना आपकी टैक्स रिटर्न भरेगा, आपका एक ऑडिट करेगा, और इस तरह से ये सारा काम होगा। तो ये मैंने खुले अल्फाज में तमाम चीज़ें बता दी हैं कि बग़ैर लाइसेंस के अगर आप काम करते हैं तो ये गैर कानूनी है। इसमें कभी भी आप परेशान हो सकते हैं, कोई मामला ऐसा हो सकता है। तो बजाय कि आप शॉर्ट टर्म प्लान करें, शॉर्ट टर्म प्लान ना करें, लॉन्ग टर्म प्लान करें। लॉन्ग टर्म प्लान 5 साल, 10 साल, 20 साल का प्लान करें, और जब आप दोस्त मिल के इकट्ठा होकर ये काम करेंगे तो आपका ख़र्चा कम आएगा। इसमें बेशुमार सर्विसेज हैं। आप उम्रे का काम कर सकते हैं, वीज़ा कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं, विज़िट वीज़ा का काम कर सकते हैं, इसके अलावा एयरलाइन टिकटिंग का काम कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं। किसी को होटल बुकिंग चाहिए, किसी को ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, इसके अलावा ओमान, बहरीन, मस्कत, कीनिया, ईस्ट अफ्रीका, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे वीज़ाज़ हैं। अगर आप ये इस लाइन में भी आते हैं तो इसमें आप अच्छा मार्जिन अर्न कर सकते हैं। फिर अगर आप जो है वो इमिग्रेशन में आते हैं और स्टडी वीज़े के डोमेन को आप पकड़ते हैं या रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं, तो उसमें भी मार्जिन मौजूद है। तो मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको ये वीडियो बता दी है, समझा दी है कि ये काम कैसे करना है बगैर लाइसेंस के। मेरा मशवरा है कि आप ना करें, लॉन्ग टर्म प्लान करें, और आप कहीं से भी ऑपरेट करें। आप अगर पाकिस्तान से बाहर हैं, दुबई हैं, कहीं UK में हैं, US में हैं, लेकिन पाकिस्तान से अगर आपने ऑपरेशंस करने हैं तो लाइसेंस मस्ट है। वो आप किसी फैमिली मेम्बर के नाम पे ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप अपने नाम पे तो नहीं ले सकते, अपनी वाइफ के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे, अपने भाई के नाम पे आप पाकिस्तान में कारोबार को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बराए मेहरबानी ये वीडियो जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता नहीं है और वो कहीं ना कहीं अनजाने में इस फील्ड में आ जाते हैं और फिर गैर कानूनी तौर पे वो काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि नामुनासिब है। छोटे लेवल से काम शुरू करें, DTS लाइसेंस से काम शुरू करें, एग्रीमेंट्स करें आयाटा के साथ, ताकि आपको डायरेक्ट IDs दी जा सकें, आप एयरलाइन टिकट्स अपनी बना सकें और आयाटा से इशू करवा सकें। जो भी क्लाइंट आपके पास आता है उसको एंटरटेन करें, ऑफिस में बिठाएं। जब आपका ऑफिस होगा तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, आपको पेमेंट करेगा और आपके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।